آج ہم خدا کے کلام کا مطالعہ واضح عنوان بادشاہ کی راہ سے کرنے میں کچھ وقت گزارتے ہیں۔ کتاب مقدس مکاشفہ باب 22 آیت 5 میں لکھے گئے الفاظ کے ذریعے ہم پر اجاگر کرتی ہے اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب ہمارے مستقبل کو اس طرح بیان کرتی ہے۔ اس لیے اب جس راہ پر ہم چل رہے ہیں وہ بادشاہ کی راہ ہے، نہ کہ ایک عام شخص کی۔ تو پھر ایمان کی اہم ترین بنیاد کون سی ہے جو ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق بادشاہ کی راہ کو مکمل کرنے کے قابل بناتی ہے؟ آج ہم اس معاملے پر غور کرتے ہیں اور اکٹھے خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ اپنے بیٹوں کو تخت سونپنے کے بجائے بادشاہ سب سے عقل مند شخص کو چننا چاہتا تھا جو سلطنت کو شائستگی اور مؤثر طریقے سے چلا سکے۔ اس لیے بادشاہ نے ایک دن لوگوں کے سامنے اپنا ارادہ بتا دیا، اب میں اگلے جانشین کا انتخاب لوگوں میں سے کروں گا۔ ہر ایک کو بادشاہ کی راہ پر چلنے کا چیلنج قبول کرنا ہوگا۔ اس لیے سب لوگوں نے اسے اپنے رتبے کو بلند کرنے کا بہترین موقع سمجھا اور وفاداری سے بادشاہ کے حکم پر عمل کیا۔ بادشاہ کا امتحان بہت آسان تھا۔ اس نے کہا کہ جنگل میں ایک خفیہ محل چھپا ہوا ہے اور جو کوئی بھی اسے ڈھونڈے گا وہ بادشاہ بن سکتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، ہم کیسے ممکنہ طور پر خفیہ محل ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اور بادشاہ نے انہیں اسے ڈھونڈنے کے لیے سمتیں فراہم کی۔ ہر ایک شہری نے سمتوں کی کاپی حاصل کی، بادشاہ کی ہدایات کے مطابق عمل کیا اور بادشاہ کی بتائی گئی سمت میں محل ڈھونڈنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ ہدایت کچھ یوں تھی کہ یہاں سے اگر آپ سمندر کے کنارے سیدھے چلیں تو آخر میں آپ کو ایک ندی دکھائی دے گی۔ تقریباً 10 کلومیٹر تک ندی کے کنارے چلیں اور پھر دائیں مڑیں۔ وہاں آپ کو ایک بڑی چٹان ملے گی۔ چٹان سے بائیں مڑیں اور 5 کلومیٹر مزید اوپر کی طرف چلیں۔ جیسے ہی آپ آگے بڑھیں گے تو آپ ایک وسیع میدان میں پہنچ جائیں گے۔ جب آپ میدان سے دیکھیں گے تو آپ کو 3 پہاڑیاں نظر آئیں گی۔ چوٹی پر پہنچنے کے لیے بائیں طرف کی پہاڑی پر چڑھیں اور بائیں مڑیں اور مزید 30 کلومیٹر تک آگے بڑھیں۔ 30 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد آپ کا سامنا ایک بڑے دریا سے ہوگا۔ دریا کو عبور کر کے مزید 60 کلومیٹر کا سفر کریں تو وہاں آپ کو خفیہ محل نظر آئے گا۔ یوں بادشاہ نے سب لوگوں کو بتا دیا۔ آپ کے خیال سے اس سلطنت میں کتنے لوگ بادشاہ بنیں گے؟ شاید بہت لوگ، صحیح؟ تاہم کوئی بھی محل ڈھونڈنے کے قابل نہ ہوا۔ بادشاہ کی ہدایات پر یقینی طور پر عمل کرنے کے باوجود ایک آدمی کے سوا کوئی بھی اس خفیہ محل کو تلاش نہ کر سکا۔ آخر میں وہ بادشاہ مقرر ہوا اور جانشین کے طور پر اسے میراث میں بادشاہی ملی۔ لوگوں نے کہا، یہ بہت عجیب بات ہے۔ یقینی طور پر ہم نے سب کچھ ویسا ہی کیا جیسا بادشاہ نے لکھا تھا۔ 10 کلومیٹر چلو، اس لیے ہم 10 کلومیٹر چلے۔ دہنی طرف مڑو، اس لیے ہم دائیں طرف مڑ گئے۔ جب ہم بائیں طرف کی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے تو ہم نے بائیں مڑ کر مقررہ فاصلہ طے کیا۔ انہوں نے ہر سمت اور ہدایت پر عمل کیا تھا، پر پھر بھی ایک شخص کے سوا کوئی بھی اس محل کو ڈھونڈنے کے قابل نہ ہوا۔ اس وجہ سے لوگوں نے اسے پوچھا، آپ اس محل کو کیسے ڈھونڈ سکے؟ اس وقت اس آدمی نے جواب دیا، آپ میں سے ہر ایک نے سمتوں کو اپنے نقطہ نظر سے دیکھا ہوگا اور تمام سمتوں کو اپنے نقطہ نظر سے مقرر کیا ہوگا، تاہم میں نے ایسا نہیں سوچا تھا۔
میں نے ہر چیز کو بادشاہ کے نقطہ نظر سے دیکھا جس نے یہ چیلنج دیا تھا۔ 왕의 관점에서 모든 것을 보았다. جب بادشاہ نے بائیں کہا تو یہ ہمارے نقطہ نظر سے بائیں نہیں تھا 시선에서 좌측이 아니고 بلکہ بادشاہ کے نقطہ نظر سے بائیں تھا۔ 좌측이었단 말이야. جب 3 پہاڑیوں میں سے 우리 세 개가 بائیں طرف کی چوٹی پر چڑھنے کو کہا گیا تھا 올라가라고 했을 때 تو شاید آپ نے اپنے نقطہ نظر سے بائیں کے بارے میں سوچا ہوگا، 시선에서 좌측이지만 لیکن میں نے 이 문제를 낸 بادشاہ کے نقطہ نظر سے سوچا 좌측 بائیں چوٹی کہاں ہوگی۔ 생각을 했다는 것입니다. اس طرح سے تمام سمتوں پر عمل کرتے ہوئے میں نے واقعی محل ڈھونڈ لیا۔ اس نے مزید کہا آپ سب نے اپنے نقطہ نظر سے ہر چیز کا اندازہ لگایا اور یہ کہتے ہوئے شکایت کی کہ ہم نے ہدایات کے مطابق عمل کیا تو ہمیں محل کیوں نہیں ملا۔ جب میں نے اسے بادشاہ کے نقطہ نظر سے دیکھا تو مجھے محل مل گیا جیسے بتایا گیا تھا۔ آپ سب کیا خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ وہ ہمیں آسمان کی بادشاہی میں شاہی کاہن مقرر کریں گے؟ 임명하신다고 약속하지 않았습니까? وہ کہتے ہیں وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ 우리가 지금 왕이 اب ہم بادشاہ بننے کی راہ پر ہیں، تو پھر ہمیں کتاب مقدس کی تعلیمات کو اپنے نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے 우리 시선에서만 바라볼 것이 아니라 بلکہ ہمیں کس کے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے؟ ہمیں سب کچھ خدا کے نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ 있더라는 것입니다. اس لیے جیسا کہ ہم آسمانی شاہی کاہنوں کے طور پر یعنی آسمان کی ابدی بادشاہی میں بادشاہوں کے طور پر عبدالآباد بادشاہی کرنا چاہتے ہیں تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں کرنے کا حکم خدا نے ہمیں دیا ہے، لیکن بعض اوقات ہم ایسے کاموں سے گریز کرنا چاہتے ہیں یا وہ ہمیں سلیب اٹھانے کی طرح مشکل لگتے ہیں۔ تاہم یہ محض ہمارا نقطہ نظر ہے۔ 우리 시선으로 바라볼 때 ہمارے نقطہ نظر سے یہ تمام کام مشکل، مایوس کن، ناپسندیدہ اور دشوار لگ سکتے ہیں، 상황일지 모르지만 تاہم خدا کے نقطہ نظر سے 그래서 예배 کیا وہ تمام راہیں جو خدا نے ہمارے لیے تیار کی ہیں عظیم ترین برکت کی راہ، 길이요. محبت کی راہ اور فضل کی راہ نہیں ہیں؟ 길 아니겠습니까? آپ سب ہمیں ان راہوں کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمارے نقطہ نظر سے یہ راہ مشکل، مقابلہ خیز، انتہائی تکلیف دہ اور دشوار لگ سکتی ہے، 길이지만 لیکن خدا کے نقطہ نظر سے یہ محبت کی راہ ہے۔ مہربانی سے اسے ذہن میں رکھیں۔ 하셔서 یہاں موجود آپ سب آسمان کی بادشاہی میں بادشاہوں کے طور پر عبدالآباد بادشاہی کریں گے، تو پھر اب ہمیں اپنی ساری زندگی میں بادشاہ کی راہ پر آگے بڑھنا چاہیے۔ 있어야 되겠습니다. بادشاہ کی راہ پر چلنے کا کیا مطلب ہے؟ 누구의 시선으로 ہم کس کے نقطہ نظر سے آخر میں آسمان کی بادشاہی کے جلالی شہر کو دیکھ سکتے اور حاصل کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے ابدی طور پر تیار کیا گیا ہے؟ یہ ہمارے نقطہ نظر سے ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے نقطہ نظر سے یہ راہ مشکل، مقابلہ خیز اور دشوار ہے، 어려운 길입니다만 تاہم جب خدا کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو سب کچھ کیسا دکھتا ہے؟ 합니까? ہم سب کو کامل فرما برداری کے ساتھ پرفضل طور پر اس راہ پر آگے بڑھنے کے قابل ہونا چاہیے، 있다는 사실을 یہ جانتے ہوئے کہ یہ ہماری خوشی اور ہماری برکات کے لیے محبت کی راہ ہے۔ 순종하고 بڑبڑانے یا شکایت کرنے کے بجائے آئیں خدا کے نقطہ نظر سے غور کریں اور سوچیں کہ خدا ہمیں اس راہ پر چلنے کا حکم کیوں دیتے ہیں۔ تب ہم یہ سمجھنے کے قابل ہوں گے کہ انہوں نے آخر میں ہمیں برکت دینے کے لیے اسے تیار کیا ہے۔ وہ جو اس راہ کو ڈھونڈتا ہے وہی بادشاہ کی راہ پر چل رہا ہے، 볼 수가 있습니다. تاہم لوگوں کی اکثریت بادشاہ کی راہ ڈھونڈنے میں ناکام رہتی ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمیں خدا کے نقطہ نظر پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب ہم سب کچھ خدا کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو جسے ہم دائیں سمجھتے ہیں وہ خدا کی نظر میں بائیں ہوتا ہے۔ 왼쪽이었습니다. اسی لیے خدا نے یہ سایہ نبی کے وسیلے کہا میرے خیال کیا تمہارے خیال نہیں ہیں، وہ مختلف ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں کس کے خیالات کی پیروی کرنی چاہیے؟ وہ بادشاہ کی راہ ہے۔ سیون کے تمام فرزندوں کو بغیر کسی توقع کے مکمل طور پر بادشاہ کی راہ کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ ہم درست طور پر سمجھ سکیں کہ کیوں کتاب مقدس کہتی ہے کہ فرما برداری قربانی سے بہتر ہے، اور مل کر آسمان کی ابدی بادشاہ کی طرف بڑھیں جو ہمارے آسمانی باپ
और आसमानी माँ ने तैयार की है। आज बादशाह की राह पर चलने की गर्ज से आए यसाया की किताब बाब 55 खोलते हैं। आयत 6 में तालीम देखते हैं। जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बद किरदार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा, और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से मुआफ करेगा। हम यसाया बाब 55 आयत 8 देखें। खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, वो मुख्तलिफ हैं। जिस नुक्ता नजर से हम चीजों को देखते हैं और जिस नुक्ता नजर से खुदा ने राह तैयार की है वो नागुज़ीर तौर पर मुख्तलिफ हैं। खुदा ने ये राह हमारी खुशी के लिए बनाई है। फिर भी जब हम इस राह पर चलते हैं तो हम अक्सर अपने आप से पूछते हैं कि ये राह इतनी दुश्वार क्यों है, ये इतनी मुश्किल क्यों है। बियाबान के 40 साल सफर पर गौर करें। वहां खाना नहीं था, वहां पानी नहीं था। खुदा ने बनी इसराइल को वसी बियाबान में चलाया जहां बज़ाहिर कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे उन्हें खुशी मिलती। ताहम जब हम सब कुछ खुदा की नुक्ता नजर से देखें तो हम समझ सकते हैं कि वो राह वाकई इसराइल के लिए थी। अगर वहां बियाबान की बजाय नखलिस्तान होता और बहुतेरों के रहने के लिए बेहतरीन जगह होती तो उस मुल्क के बाशिंदे खुशी से इसराइलियों के गुजरने के लिए रास्ता ना खोलते। क्या वो ऐसा करते? 40 वर्षों तक इस राह पर चलते हुए हर रोज लोग वहां के बाशिंदों के खिलाफ लड़ाइयों में मसरूफ रहते। ताहम चूंकि ये एक ऐसी राह थी जिसकी किसी को ख्वाहिश नहीं थी, तो क्या बनी इसराइल के लिए बियाबान में चलना मुमकिन नहीं था? जब हम चीजों को खुदा की नुक्ता नजर से देखें तो हम वाकई आसमान की अब्दी बादशाही में जलाली शहर ढूंढ सकते हैं। खुदा पर कामिल ईमान रखने और बकसरत बरकत हासिल करने की गर्ज से इन तमाम तालीमात के जरिए हमें हमेशा यह तस्लीम करना चाहिए कि खुदा का कलाम रास्त है और बरा की पैरवी के लिए तैयार रहना चाहिए जहां कहीं वो हमें ले जाए। सही। आए इस्तिस्ना की किताब के बाब 8 से जारी रखते हैं। बाब 8 आयत 1। सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं तुम एहतियात करके अमल करना ताकि तुम जीते और बढ़ते रहो। और जिस मुल्क की बाबत खुदामा ने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई है तुम उसमें जाकर उस पर कब्जा करो। और तू उस सारे तरीक को याद रखना जिस पर इन 40 वर्षों में खुदावन तेरे खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया, ताकि वो तुझको आजिज करके आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। बियाबान में 40 वर्षों तक खुदा ने उनके दिलों को आजमाया कि वो उनके हुक्मों को मानेंगे या नहीं। दूसरे अल्फाज में खुदा ने उनके ईमान की जांच की थी। खुदा उन लोगों को अपने लोगों के तौर पर तस्लीम करते हैं जिनका ईमान सच्चा होता है और जो कहते हैं कि खुदा का कलाम हमेशा रास्त होता है। क्या वो नहीं करते? ताहम जो लोग अपने नुक्ता नजर से देखते हैं वो ताजुब करते हैं, यहाँ पानी क्यों नहीं है, यहाँ खाना क्यों नहीं है, क्यों यहाँ एक भी सायादार जगह नहीं है बल्कि सिर्फ तेज धूप और जलता हुआ सूरज है। इस तरह से उन सब ने दुख उठाया था। लेकिन अगर उन्होंने खुदा के नुक्ता नजर से देखा होता और पूछा होता कि खुदा हमें इस राह पर क्यों ले जाते हैं, तो क्या वो ये जानने के काबिल ना होते कि खुदा उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते और उन्हें अजीज रखते हैं। इसीलिए खुदा कहते हैं क्योंकि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। आए यसाया बाब 55 आयत 9 से देखते हैं कि इनमें कितना फर्क है। क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वहां वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रोयदगी का बायस होती है ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मौसर होगा। कहानी में जो मैंने पहले आपको सुनाई
अगरचे लोगों ने बादशाह की बताई हुई हिदायत पर अमल किया था, पर वो महल ना ढूंढ सके। वो हर चीज को बादशाह के नुक्ता नजर से देखने की समझ नहीं रखते थे। चूंकि बादशाह पहले ही इस हकीकत को जानता था, इसलिए वो अपने लोगों में से किसी ऐसे शख्स की तलाश में था जो सब कुछ बादशाह के नुक्ता नजर से देखे। आसमान की बादशाही में खुदा उन लोगों को क्या बनाते हैं जो इस किस्म का नुक्ता नजर रखते हैं? वो उन्हें शाही काहिन बनाते हैं। खुदा ने कहा कि वो अब्दुल्लाबाद तक इसके मालिक रहेंगे। इस जलाली ओहदे पर सही तौर पर खड़े होने के लिए हमें भी खुदा का नुक्ता नजर रखना चाहिए। हमें ये इसरार नहीं करना चाहिए कि सिर्फ हमारे ख्यालात, जिद, नजरियात और नुक्ता नजर दुरुस्त हैं। क्या ये वाज़ेह तौर पर गाइड बुक में नहीं लिखा है कि दाएं तरफ जाओ, 10 किलोमीटर चलो और फिर दाहिनी तरफ मुड़ो? क्या हमें यकीनी तौर पर ऐसा नहीं करना चाहिए? कई लोगों ने सिमतों की पैरवी की, फिर भी वो महल तलाश ना कर सके। इसकी वजह यह थी कि नुक्ता नजर मुख्तलिफ था। बादशाह ने यकीनन हर एक को तमाम हिदायत दुरुस्त तौर पर फराहम की थी। ताहम जो कुछ लोगों के नुक्ता नजर से उनके दाएं तरफ था, वो बादशाह के नुक्ता नजर से उनके बाएं तरफ था। उन्होंने इस पर गौर नहीं किया था। मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। जब हम खुदा के बख्शे इन कलमात को एक बार फिर अपने दिलों पर कंधा करें, तो आज हमें क्या करना चाहिए? सबसे अहम बात यह है कि हमारा ईमान होना चाहिए कि जहां कहीं वो हमें ले जाएं, हम उनकी पैरवी करेंगे। क्या ये बादशाह की राह के लिए बेहतरीन और आला तरीन काम नहीं है? आए खुदा के कलाम का मुताला जारी रखें। लूका बाब 22। आए लूका की किताब बाब 22 आयत 42 से देखते हैं। लूका बाब 22 आयत 42 में यीशु ने कहा, ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। आज इस जमीन पर रहने वाले हम लोगों के लिए यीशु ने ये तमाम तालीमात क्यों छोड़ी हैं? उन्होंने हमें बादशाह की राह पर चलने की हिदायत दी है। मसीह जो बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद हैं ने कहा, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। उन्होंने ये तालीम किसके लिए छोड़ी थी? क्या उन्होंने ये तालीम हम आसमानी लोगों के लिए नहीं छोड़ी जो इस जमाना में रह रहे हैं? उनका मतलब था कि मैं हर काम खुदा के नुक्ता नजर से करना चाहता हूं, ना कि अपने नुक्ता नजर से। अगर ये मेरे इख्तियार में होता तो मैं इस जगह से बचना और इस सूरत हाल से बाहर निकलना चाहता हूं। तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। अगर आप पूछें कि यह क्या है, तो यह बादशाह की राह है। क्या बादशाह की राह बहुत शानदार नहीं है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये शानदार काम नहीं कर सकते हैं। वो ओहदा जिसका खुदा ने हमसे वादा किया है, आसमान की बादशाही में शाही कहानत का है। इसलिए हमें इस राह से हटना नहीं चाहिए। इस राह पर चलते हुए ऐसे औकात होते हैं जब हमें सलीब, गहरी खाई और हत्ता के ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जो हमने कभी नहीं चाहे थे। ताहम जब हम आखिर तक वफादारी से इस राह पर चलते हैं, तो खुदा हम पर जाहिर करते हैं कि वो राह जो उन्होंने इस सारे अमल के बाद तैयार की है, ऐसी राह है जिस पर सिर्फ वो लोग चल सकते हैं जो बादशाह बनेंगे। वो राह बादशाह की राह है। आप सब, अब हम इस राह पर चल रहे हैं। क्या हमें वो नहीं बनना चाहिए जो आसमान की अब्दी बादशाही में पहुंचने तक कभी हार नहीं मानते? यीशु की तालीमात में भी ऐसे ही तालीमात मौजूद थीं। नीज यसाया नबी की तालीमात में खुदा की मर्जी को समझा जा सकता था। खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं।
क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। तो फिर फितरी तौर पर हमें किसकी राह और नुक्ता नजर अपनाना चाहिए? हमें खुदा का नुक्ता नजर अपनाना चाहिए। जिस राह पर हम इस वक्त चल रहे हैं और जिस राह पर हमें मुस्तकबिल में चलना है, आए हम हमेशा खुदा का नुक्ता नजर रखते हुए वफादारी से उस राह पर चलें। आए हम सब इन तमाम मामलात में किसी भी लम्हे ना हिचकिचाएं। आए खरूज की किताब बाब 14 पर एक नजर डालें। आज हम किताब मुक़द्दस से एक एक करके तस्दीक करते हैं कि बादशाह की राह कैसी है। खरूज बाब 14। आए खरूज बाब 14 आयत 15 से देखते हैं। खुदावन ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इसराइल से कह कि वो आगे बढ़ें और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और उसे दो हिस्से कर और बनी इसराइल समुद्र के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। बनी इसराइल को जिंदगी या मौत के लम्हे का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके पीछे मिस्री फौज थी और बहरे कुलसम ने उनके आगे का रास्ता रोक रखा था। ये 3500 साल पहले हुआ था। वो ना तो आगे बढ़ सकते थे ना ही पीछे हट सकते थे। ये एक रुकावट थी। मूसा और बनी इसराइल को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा जहां वो ना तो आगे बढ़ सकते थे ना ही पीछे। ताहम खुदा के नुक्ता नजर से क्या ये रास्ता वाकई मुश्किल था? हरगिज नहीं। बनी इसराइल के नुक्ता नजर से उनके सामने समुंदर एक रुकावट था और मिस्री फौज पीछे से घेर रही थी और उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि अगर पकड़े गए तो हम पहले से भी कहीं ज्यादा दुख और अजाब का सामना करेंगे। ताहम जो लोग बादशाह की राह पर चलते हैं वो खुदा की नजर से देख सकते हैं। ऐसी मायूस कुन सूरत हाल में खुदा ने अपनी राह खोली। क्या उन्होंने समुद्र को खुश्क जमीन नहीं बनाया था? यूं ऐसे हालात में भी जो हमारे लिए नाकाबिल तज़खीर और नाकाबिल तसव्वुर थे, खुदा ने हमेशा आसानी से राह हमवार की। और वो सब लोग जो उन पर ईमान रखते हैं उन्हें ऐसे जलाली काम के गवाह बनने की इजाजत देते हैं। वो जो बादशाह की राह पर चलते हैं उनके पास बादशाह का नुक्ता नजर होना चाहिए। जो लोग खुदा की तैयार करदा आसमान की अब्दी बादशाही के मुक़द्दस शहर में दाखिल होना चाहते हैं, यानी वो जो शहर को दरियाफ्त करने का इरादा रखते हैं, उन्हें खुदा के नुक्ता नजर से देखना चाहिए, ना कि इंसानों के नुक्ता नजर से। वरना बाद में वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में जा सकते हैं। हमें उसी तरह पैरवी करनी चाहिए जैसे खुदा हमारी रहनुमाई करते हैं। जहां कहीं भी खुदा हमारी रहनुमाई करते हैं हमें उनका नुक्ता नजर अपनाना चाहिए। और जब वो कहते हैं बाएं तरफ जाओ या दाएं तरफ जाओ, तो हमें याद रखना चाहिए कि जिस राह का खुदा हुक्म देते हैं वो हमेशा दुरुस्त होती है, ताकि आसमान की बादशाही की राह में कोई भी पीछे ना रह जाए। हत्ता कि मुसीबतों में जो लोग ऐसी मुश्किलात को खुदा के नुक्ता नजर से देखते हैं वो बुड़बुड़ाते या शिकायत नहीं करते। ताहम उनके बारे में क्या ख्याल है जो इंसानी नुक्ता नजर रखते हैं? वो बुड़बुड़ाते और शिकायत करते हैं। उन्होंने कहा, तूने हमको मिस्र में क्यों नहीं रहने दिया? तो क्यों हमको मिस्र से निकालकर बियाबान में मरने के लिए ले आया है? खुदा ने ऐसे लोगों के साथ क्या किया था? खुदा ने उन सबको नाअहल कर दिया, ये कहते हुए कि तुम मुकद्दस शहर में दाखिल होने के लायक नहीं हो। बियाबान में अपने 40 वर्षों के दौरान वो सब मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हलाक हो गए थे। आज आए हम एक बार फिर माजी की इस तमाम तारीख पर गौर करें जो अक्स का काम करती है। हमें अपने नुक्ता नजर से बादशाह की राह पर नहीं चलना चाहिए। हमें खुदा के नुक्ता नजर को अपनाना चाहिए, खुदा की सिमत को मुकम्मल तौर पर समझना चाहिए और ये जानना चाहिए कि खुदा की मर्जी कहाँ है। ऐसा करते हुए हम खुदा की मर्जी की फरमाबरदारी कर सकते हैं और जहां कहीं वो हमें ले जाएं, हम उनकी पैरवी कर सकते हैं। और भी बहुत सी मिसालें हैं।
जिन में जिदाउन की तारीख, 역사라든지 यरहू की फतह वगैरह शामिल हैं। 성 정복의 역사라든지 अगर हम इन्हें खुदा के नुक्ता नज़र से देखने की बजाय इंसानी नुक्ता नज़र से देखें तो सब कुछ बेमानी लगता है। 1,35,000 आदमियों की दुश्मन फौज के मुकाबले में जिदाउन के सिर्फ 32,000 आदमी थे, यानी जिदाउन को सिपाहियों की कम तादाद के साथ मिद्यानी फौज का सामना करना पड़ा। फिर भी खुदा ने उसे हिदायत देना जारी रखा कि तादाद को कम करो। इंसानी नुक्ता नज़र के मुकाबले में खुदा का नुक्ता नज़र क्या है? ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। दरअसल उसने सिर्फ 300 आदमियों के साथ 1,35,000 आदमियों को शिकस्त दी थी। 이런 모든 일들도 ये एक अहम पहलू है जिसे आसमानी शाही काहिनों को अपने दिलों में रखना चाहिए, जो आज बादशाह की राह पर चल रहे हैं। 둬야 될 중요한 어떤 부분 중에 한 부분이라고 볼 수 있습니다. यरहू की फतह के बारे में क्या ख्याल है? वहां हमला या मुहासरा होना चाहिए था, लेकिन खुदा ने कहा हर रोज यरहू के गिर्द महज चक्कर लगाओ। क्या उनके नुक्ता नजर का कोई मतलब है? हम महज इसके गिर्द चक्कर लगाने से कैसे जंग जीत सकते हैं? क्या हम कभी यरहू फतह कर सकते हैं? कितना वक्त लगेगा? ऐसा लगता था कि मुशीरों से मशवरा करके हिकमत अमली और मंसूबे बनाने चाहिए, शायद सुरंगें खोदनी या खुफिया तौर पर अंदर जाना चाहिए। ताहम खुदा ने कहा इसके गिर्द चक्कर लगाओ। खुदा के नुक्ता नजर के बारे में ऐसी कई चीजें थीं जिन्हें वो समझ नहीं सके थे। ताहम वो बादशाह की राह थी। जो लोग उस राह पर चलना जानते हैं आसमान में शाही काहिन बन सकते हैं। क्या ये सच नहीं है? आज इस वक्त से आए हम सब एक बार फिर गहराई से अपने दिलों पर कंधा करें कि क्यों हमें बरा के पीछे चलना चाहिए, चाहे वो हमें कहीं भी ले जाए। खुदा ने हमें किताब मुक़द्दस के जरिए उस राह के बारे में आगाह किया है जिसे बादशाह की राह पर चलने वाले लोगों को इख्तियार करना चाहिए। खुदा के नुक्ता नजर से उन्होंने उस राह को कैसे देखा था? हमारे अपने नुक्ता नजर से हम समझते थे कि हम सब कुछ सही तौर पर कर रहे हैं, लेकिन खुदा की नजर में हम दरअसल मुखालिफ सिमत में जा रहे थे। चीजों को खुदा के नुक्ता नजर से ना देख पाना एक बड़ी लापरवाही और गलती थी। वो राह जिस पर हम चल रहे हैं महज आसान राह नहीं है। हम सब किस किस्म की राह पर चल रहे हैं? ये बादशाह की राह है। इस बात को याद रखते हुए आए हम सब आसमान की अब्दी बादशाही में अब्दुल्लाबाद कायम रहने वाले जलाल में शरीक हों। उम्मीद करते हुए कि आप सब इस जलाल में शरीक होंगे, मैं वाज को खत्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। 감사합니다.